So today we are welcoming Mr. Charanjit Singh, who is a very renowned fund manager with DSP Mutual Fund, or he very successfully runs India's one of the best performing funds, which is DSP Tiger Fund and DSP Business Cycle Fund also. Uh, we shall be getting some very insider inputs from Charanjit Saab today, because as an MFD, as a mutual fund consultant, we design your mutual fund portfolios. आपका लाइफ गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में सेग्रीगेट करते हुए कौन सा फंड का किस प्रोपोर्शन में एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया जाए, दैट्स आवर कॉल, दैट्स आवर जॉब. Maintaining your behavior as per market fluctuations, because we all live in a world of sentiments, or which I call Maya. कभी 7 महीना 8 महीना पहले, सितंबर के पहले, एक ग्रीड वाला माहौल था जिसमें हर इन्वेस्टर मुझसे कहता था, व्हाई डोंट यू टेक 100% इक्विटी एलोकेशन, व्हाई यू आर स्टैगरिंग माय इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एसटीपीज एंड ऑल, असेट एलोकेशन क्यों करना है, आप 100% इक्विटी में क्यों नहीं जाते हैं. और फिर इसके बाद हमने टिल मार्च 7 महीना गुजारा जिसमें पीपल वर इन पैनिक कि अरे इक्विटी फंड से तो ज्यादा बेहतर जो है इक्विटी सेविंग फंड ही कर रहा है, तो व्हाई डोंट यू पुट माय मनी इनटू इक्विटी सेविंग फंड. टाइगर फंड जो टॉप पे आ रहा है, टाइगर की भी चमक थोड़ी धीमी पड़ रही है. एंड देन अगेन पिछले 2 महीनों में फिर से मार्केट के समीकरण बदले हैं, और फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो एक वनडे आईपीएल मैचेस कन्वर्ट होके टेस्ट मैच शुरू हो गए. सो इस फोरम पे सबसे पहले चरणजीत साहब, आपका स्वागत है नर्चरिंग मनी प्राइवेट लिमिटेड परिवार में. Thank you. We are very obliged that you took your time this Saturday to be with us and to enlighten us with your knowledge. Few words about Charanjit Saab. He is an MBA in finance and he is BTech in electronics and communication, and now DSP के साथ more than around a decade, I mean touching a decade, he has spent, and he is running, as I told you earlier, only one of the most successful funds of the industry, that's DSP Tiger Fund. नाउ चरणजीत साहब, शुरुआत करने के पहले बस मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जैसे हम आईपीएल में बड़ा थ्रिल आता है और टेस्ट मैच थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, तो अगर हम पिछले 20-25 दिनों को अगर देखा जाए तो हम रेंज बाउंड एक टहल रहे हैं मार्केट में, कोई एडवेंचर नहीं आ रहा, कोई पैनिक नहीं आ रहा, शटल है. अब इसमें एक डायलेमा भी हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूर्ता भी हो जाती है, एक सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि हम कॉल कौन सा लें, हम 100% इक्विटी कॉल लें, इक्विटी में हम लार्ज मिड स्मॉल कौन सा लें, क्योंकि अगर वैल्यूएशंस को देखा जाए सो एवरीथिंग इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन टू द एवरेजेस. तो कहना है एक फंड मैनेजर का इस मार्केट को देखते हुए, एंड व्हाट इज द मार्केट आउटलुक फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म? Sir. Yeah. So, hello. Yeah, I'm audible? Very much audible. So, first of all, thanks, Gauravji, and thanks for having me for this first session of yours. And I would wish that this community becomes bigger, grows bigger, and has much more equity culture. और जो हम यहाँ पे वेस्ट में देखते हैं वैसा इक्विटी कल्चर हमें अच्छा लगेगा कि नॉर्थ में भी हमारा बड़ा बने. And northern investors should also see this kind of a rise what West has seen in terms of the participation in the equity markets. Now, the biggest question is, like you're rightly saying, valuations is one big issue. And why is that an issue? That is an issue because we have seen consistent, strong returns over the last 4 to 5 years. And people have got used to making consistently high returns. तो ऐसा होता है कि जब आपका पैसा एक बार बनने लगता है तो आपको लगता है कि ये हमेशा बनता रहेगा और इसी पेस पे बनेगा. But market is never like that. Market will go into its own cycles. There'll be cycles where we will make exceptional amount of money as GDP growth rate is rising, as liquidity is coming into the market, and lot of those structural factors जिनके कारण ये returns बनते हैं हमारे, right? And then there'll be times when GDP growth rate will start slowing down. There'll be times when there'll be global issues like what you have seen. That is where the returns start reducing
बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। जब मार्केट को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, सो स्टॉक्स और कंपनीज को भी समझ नहीं आएगा कि आगे जाके हमारी अर्निंग्स की ग्रोथ कैसे आएगी। अगर हम पिछले 4 साल देखें, उसमें हमने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखी हैं। एक, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत जोर से आई और हमारा पी री रेटिंग हुआ, पी मल्टीपल, द वैल्यूएशन मल्टीपल। जो हमारा 15 से 18 चलता होता था, अभी हम 24 के पी मल्टीपल पे चले गए थे। नाउ इट इज करेक्टेड टू अराउंड 20 to 21 टाइम्स पी मल्टीपल। सो इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम वर्सेस द एवरेज मल्टीपल। और उसका ये भी हुआ है कि एज एन एसेट क्लास, आई थिंक अभी इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है विच इज अवेलेबल टू द कॉमन पर्सन versus maybe FD or a real estate, where they can look forward to make a consistently maybe a 12% return over the longer term. तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये सोचना है कि इस एसेट क्लास में मेरा 12% रिटर्न बनना चाहिए। There'll be certain years where you will make exceptionally high return. There'll be certain years where you will make lower returns, which is called, bear market or consolidation happens, and that is what kind of levels out these returns to 12% levels. सो आज की मार्केट में अगर आप देखें, सो डेफिनेटली स्मॉल और मिड कैप में जो वैल्यूएशन है वो महंगी हो गई है। और उसका महंगे होने का रीजन यही है बिकॉज मोर एंड मोर मनी हैज बीन चेजिंग दी स्टॉक्स। जितना आपका इंक्रीमेंटल फ्लो आया है पैसा म्यूचुअल फंड्स में, वो सबसे ज्यादा आया है थीमेटिक फंड्स में, उसके बाद आया आपका स्मॉल और मिड कैप फंड्स में, और सबसे कम किसमें है, लार्ज कैप फंड्स में। सो मार्केट के ये साइकिल है, जैसे आपका समय का चक्र होता है वैसे ही मार्केट के चक्र है कि जैसे जैसे आपके वो स्टॉक चलते जाएंगे, महंगे होते जाएंगे, फिर जो वो आपका पैसा है वो रोटेट होके लार्ज कैप में जाएगा। तभी आप देखेंगे कि पिछले कुछ एक महीनों से लार्ज कैप हैज बीन वन ऑफ द प्रेफर्ड कैटेगरी और लार्ज कैप में फ्लो आना चालू हुआ है बिकॉज वहां पे आपको वैल्यू दिख रही है। जो मनी इज ऑल्सो कमिंग इनटू हाइब्रिड्स, क्योंकि आपका अगर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो आप कह रहे हैं कि मैं इक्विटी हाइब्रिड में डालूं ताकि आज की डेट में मैं अपने रिटर्न्स को और अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकूं, और जब ये मेरी विजिबिलिटी इंप्रूव होगी तब मैं थोड़ा ज्यादा डिप्लॉय कर सकूं। सो ये मार्केट के साइकिल्स चलेंगे। और आज की डेट में वैल्यू कहाँ लग रही है, डेफिनेटली लार्ज कैप में वैल्यू है। स्मॉल और मिड कैप दे हैव बिकम एक्सपेंसिव बिकॉज आपने बहुत ज्यादा अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स कर लिए। अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स क्या है कि जो मेरा अगले 2-3 साल का रिटर्न है मैं आज ही ले लिया है। अगर आपने आज वो ले लिया है तो इसका मतलब है अगले आने वाले आपके रिटर्न दे विल बिकम लेसर एंड लेसर। So I think I look at it this way, while you should not get negative on the market because of the fact that it is a compounding machine. ये कंपनियां हैं, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी आएगी, हमारी जीडीपी की ग्रोथ इंप्रूव होगी। जैसे जैसे वो इंप्रूव होगा ये कंपनियां विल बिकम बिगर इन साइज। मे बी इन द नियर टर्म द रिटर्न्स कुड फ्लैटलाइन, बट इन द लॉन्गर टर्म यू हैव टू फोकस ऑन योर दिस 12% जर्नी, क्योंकि आपके पास और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है विच कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स। एंड इफ यू लुक एट इवन रियल एस्टेट में टिकट साइज बहुत बड़ा है। रियल एस्टेट इज अ वेरी इलिक्विड मार्केट, so that is why you have to look at it as an asset class, which is an asset class which can give me this kind of a return to fight the inflation and forget about a lot of these short term noises. If you are consistently putting your money into the funds on a longer term basis, you will be coming out as a winner. ओके चरण साहब, वेरी ब्यूटीफुली नैरेटिव। जैसा आपने ठीक बताया, जो प्रॉपर्टी असेट क्लास है उसमें एक तो बहुत ज्यादा पैसे भी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और हमारा माइंडसेट भी प्रॉपर्टी लेने के बाद एक बड़ा लॉन्ग टर्म का होता है। ना तो हम स्पीड में आते हैं, ना तो हम फियर में आते हैं। अगर बाजार में भाव का उतार चढ़ाव, जो कहीं रडार तो लगा नहीं है, कोई मीटर तो लगा नहीं है, वो वर्बल चीजें होती है। बट इवन इफ अगर उतार आता है तब भी हम स्टिक करते हैं, चढ़ाव आता है तो हम बेचने की जल्दी नहीं करते हैं। मगर जो इलिक्विडिटी प्रॉपर्टी में है उसके बनिस्बत मार्केट में काफी लिक्विडिटी है, और थोड़ा सा भाव बढ़ता है तो या तो हम बहुत ज्यादा ग्रीडी होने लगते हैं और चाहते हैं कि 100% इक्विटी ले लिया जाए, और उसमें भी वैल्यूएशन को छोड़ो यार, स्मॉल कैप में इतना ज्यादा रिटर्न पड़ रहा है तो क्यों ना स्मॉल कैप में ही लिया जाए। और थोड़ा सा मार्केट का रिवर्स साइकिल आता है तो हमें लगता है कि नहीं नहीं बेचो और भागो, यहाँ तो अपना मूल बचाना भी मुश्किल हो सकता है। ये बातें होने लगती है, इससे बढ़िया तो एफडी है, कम से कम 7 से 8% का ब्याज तो मिल जाता है।
सो हमारे अगर माइंडसेट क्लियर हो कि ऑन एन एवरेज हमें 12% का रिटर्न इस असेट क्लास में मिलेगा, थोड़े बहुत स्ट्रैटेजिक कॉल, टैक्टिकल कॉल ले लें तो 2-3% का अल्फा भी हम जनरेट कर Yes. सकते हैं। सो आवर जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आप देखिए 2022 में जब से रसिया ने यूक्रेन पे वॉर किया और हमारी मीडिया उसे ऐसे दिखा रही थी जैसे 1 महीने में वो यूक्रेन को जीत के ले आएंगे और वॉर खत्म हो जाएगा, बट द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। और इसके बाद हमारा इजराइल हमास चालू हो गया और फिर हमारे यहाँ इंडो पाकिस्तान वॉर हमने देख लिया। और जब एक के बाद एक खत्म होते थोड़ी राहत की सांस लेते हैं तो फिर नया, कल फिर से एक नया ईरान इजराइल न्यूज में आ गई। सो all these geopolitical war or tensions, number one I won't ask you कब तक चलेगा because you may not be the right person to comment, मगर इस टेंशंस का हमारे इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कितना हमें डरना चाहिए, कितना हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए अगर ये प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल चलता रहे। सर सी आप देखिए दुनिया में काफी समय से थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट चल रहा था और उसके बाद हमने क्या देखा कि सडनली दीज कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड राइजिंग वेयर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड and everybody thought that Russia Ukraine war will end in 2 to 3 weeks, but it has gone for like years now, 2 to 3 years, right? Then there are smaller wars which are happening between maybe Israel, Palestine, and now with the Israel and Iran. And all these wars, what do? They create a lot of uncertainty in the market. They also create a lot of uncertainty in terms of your logistics, supply chain, and that creates a lot of risk off environment. पहले जैसे सबका रिस्क ऑन था, रिस्क ऑन होता है कि ठीक है डर नहीं है लगाते जाओ, लाइक यू आर सेइंग कि 100% लगा देना इक्विटी में। तो अभी क्या होगा, रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट होगा, फिर पीपल से अच्छा अभी 100% नहीं लगाना, मे बी 50% लगाइए, बाकी डेट में रखिए या अपना सेफ कैश में रखिए। दैट इज हाउ द एनवायरनमेंट चेंजेस वेरी रैपिडली विद दीज इवेंट्स। But what you see is कि when you look at longer term history and markets when they have been roaring like crazy कि चलती जा रही हैं, then these corrections are opportunity for a long term investor who is looking at compounding his money. These are very good opportunities क्योंकि जो अच्छा इन्वेस्टर है वो हमेशा कहेगा मेरे को सेल कब मिल रही है। आप अमेजन पे जाते हैं ना तो आप कहते हैं अच्छा ये बिग $1 बिलियन सेल है तो मैं आज लूंगा, बट जब मार्केट में सेल लगती है तब सारे भाग जाते हैं क्योंकि उस वक्त रिस्क बढ़ता है और कोई नीचे के भाव पे लेने के लिए तैयार नहीं होता और ना किसी का कैश होता है। So that is why having cash at the right times is your best friend. And when the market corrects, then deploying your money. और आपको लगेगा कि तो और करेक्ट हो जाएगी, so you have to keep spacing it out. Like you rightly said कि STPs करिए कि जब मेरा रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट चल रहा है तब मैं उसको स्टैगर करके एक्यूमुलेट करता रहूं, तब मुझे अच्छे फंड्स जो है 20% डिस्काउंट पे मिल रहे होंगे, 10% डिस्काउंट पे मिल रहे होंगे, बट दैट इज द टाइम when actually जो आपके portfolio के outcome है they'll become much better when you buy at those times. So I think a lot of these conflicts now when you look at Iran-Israel war right now, so there's a big worry that it could become a nuclear kind of a war. And Israel also acted because they had an intelligence कि these guys are getting into more nuclear development and that could have a existential issue for Israel itself. बट जब भी कोई ऐसा एक बड़ा इशू आता है सो मे बी 1 or 2 days the war will continue, but then they will not, or especially US will not let it become a bigger issue like what they did between India and Pakistan. जब उन्हें लगा कि ये न्यूक्लियर वॉर का एक साइन दिख रहा है या उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे इंपैक्ट हुआ, so US stepped in and US said that you need to stop this war. Similarly for Iran Israel, definitely US is highlighting that if Iran gets very aggressive, they will step in and they would like to stop this war. तो ये जो है एक फॉर्मेट ये बहुत जोर से चल रहा है और जब तक एक यूएस स्ट्रॉन्ग पावर रहेगा they will be able to counterbalance that. They have still not been able to do this for Russia because Russia has its own ways of working. But I think in the case of Iran, Israel,
the US will be able to, dominate and trying to bring this war to end so that it doesn't become a bigger regional issue. But नियर टर्म में क्या होगा इसके बाद? नियर टर्म में हमने क्या देखा है कि ऑयल के जो क्रूड ऑयल के भाव हैं वो 8% से बढ़ गए. 1/3 of the global oil passes through the Strait of Hormuz, and which is getting maybe choked, where we could see Iran, creating more tensions. So it means that oil will continue to rise in the near term. So if that happens, what happens to countries like India? Country like India, which is a net importer, while we have been able to manage our impact of these oil price rises by buying some discounted oil from Russia, but definitely it has an impact as we are still importing, oil. What maybe US can do, US has also got 4 billion barrels of supply which they can bring into the market and try to stabilize the oil price. अभी आप देखिए इजराइल ने भी उस टाइम पे किया है कि 4 साल से ऑयल का भाव जो है बहुत वीक चल रहा था. सो एवरीबडी इज वेरी स्ट्रेटेजिक कि जब तक ऑयल का भाव नीचे है तब तक आप ये सब कर सकते हो, और जब ऑयल का भाव ऊपर आएगा तो यू नीड टू स्टॉप, बिकॉज इट आल्सो स्टार्ट्स इंपैक्टिंग यूएस इकोनॉमी एंड यूएस विल नॉट लेट दैट हैपन. सो नियर टर्म में क्रूड ऑयल प्राइसेस विल गो अप. It impacts countries like India, which are importers. It impacts a lot of sectors where oil is an input, be it paint sector, be it the OMCs. A lot of these sectors get impacted. That is where you are seeing the correction also coming in the market. And that is where then you are taking a longer term call. आप अपने जो हैं गोल्स उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है जहां पे मुझे मार्केट में अच्छी करेक्शन मिल रही है, जहाँ पे I can, deploy more of my money and buy, maybe more flexi cap kind of, products which are more diversified, which are more quality tint in terms of, the investment style which a fund manager has. Once you do this, then you will be a winner. And plus, in your investing journey, Gaurav ji, you always need to have a very important balance of asset classes. अगर अपना नॉर्थ में भी हम देखते हैं, so generally the asset class allocation is very real estate heavy, right? But we need to think कि मेरा equity portfolio कितना है, मेरा precious metals का exposure कितना है, और वैसे हमें अपना एक portfolio बनाना है. जो precious metals हैं, gold, silver, these are going to be also, they should be part of your portfolio. Or silver, I will tell you a very important point, where right now gold has been outperforming silver for a very long time. But silver is a metal which is being driven by demand, not just as an asset class to save value. So silver आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, डिफेंस में जा रहा है, ईवीज में जा रहा है. इसलिए जो सिल्वर है उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. सो एज एन एसेट क्लास यू नीड टू थिंक कि आपके पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी है, कितना रियल एस्टेट है और कितना ये प्रेशियस मेटल है. एंड देन व्हेन यू विल फॉर्म and use these market opportunities to dips to buy, then you will have a much better outcome. Okay, sir. I will give you my takeaway from this conversation. Gold is giving way to silver, maybe in the short term, and then bottom gold will persist. मगर हम लोग एज ए लेमैन हम खाली गोल्ड की बातें करते हैं, हम सिल्वर को भूल ही जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो एन एसेट क्लास. आपने बड़ा अच्छा किया, हमें रिमाइंड करवा दिया इस बात का. And then of course an asset allocation mix has to be there. Now I will have a follow-up question on this related to geopolitical tension only. जैसा आपने rightly कहा कि जब एक war शुरू होता है तो एक momentary opportunity का माहौल होता है, और उसके लिए थोड़ा सा गन पाउडर हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है in the form of liquid assets which we can फायदा जिसका उठा सके इस अपॉर्चुनिटी को लेने में. क्या इस अपॉर्चुनिटी को लेने वक्त हमें एक सेक्टोरल अगर कॉल लेनी हो, जैसे अभी हमने देखा है कि डिफेंस जो लगातार रिटर्न देता ही आ रहा था और करेक्शन साइकिल में कम हुआ और इसके बाद फिर से पिकअप पकड़ गया, तो क्या
ऐसे सेक्टर्स में हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए? क्या आज भी हम डिफेंस और एआई रिलेटेड थिंग्स को फोकस करना चाहिए या एक फ्लेक्सी कैप में जैसे पोर्टफोलियो में जाना चाहिए? इस बात का अंदाजा रखते हुए कि पहले से भी हमारे पास फ्लेक्सी कैप है और हम्म, अगर हमें सेक्टोरल कॉल लेना हो तो कौन-सा सेक्टर हम प्रेफर करें आज के माहौल में? हम्म। सो देखिए गौरव जी, ये जो सेक्टोरल कॉल्स होती हैं बहुत टफ कॉल्स हैं। ठीक है, इसमें आपने पहले अगर इन्वेस्ट किया हुआ है फंड में, तो आप पहले डाउन टर्न भी देखेंगे और फिर अप मूव देखेंगे, राइट? बस आपको देखना है कि ये सेक्टर में कितना जो है आगे का ग्रोथ प्राइज इन हो गया है। जब तक वॉर चल रही है तो लोग अभी डिफेंस की बात कर रहे हैं, 6 महीने के बाद पीपल विल इवन फॉरगेट डिफेंस, क्योंकि ये क्या है, B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट ने खर्चा करना है और डिफेंस जो है ये बहुत लॉन्ग साइकिल होता है। एक कंपनी को आप देखेंगे आज ऑर्डर आया है और अगला ऑर्डर आएगा मे बी 1 या 2 साल के बाद। अभी आप डिफेंस स्पेस में देखते हैं तो सारे के सारे क्या है, डिफेंस पीएसयूज के पास आज की डेट में 7 से 8 साल का ऑर्डर बुक है। सो इसका मतलब है अब आगे जाके उनको क्या करना है, उन्हें दिखानी है अच्छी एग्जीक्यूशन। और अगर एग्जीक्यूशन नहीं आएगी तो ये स्टॉक्स की आप देखिएगा फिर जो है करेक्शन आएगी। सो व्हेन यू हैव मेड एनफ मनी एंड स्टॉक्स हैव री-रेटेड सिग्निफिकेंटली। सी, जब हमने इनिशियली 2021 में डिफेंस एज अ थीम हाईलाइट किया था, तब ये थीम वाज नॉट नोन टू पीपल, राइट? दिस थीम वाज आल्सो चीप। नॉर्मल जो शिपयार्ड है 6-7 के पी पे थे, एयरक्राफ्ट कंपनीज जो है HAL वगैरह 10-11 के पी पे थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो अच्छी कंपनी है वो 15-20 के पी पे थी। आज क्या है पी? आज है 40 से ऊपर का पी। सो जब आपका मल्टीपल जो इतना महंगा हो गया, तो आप अगर एक सिंपल थॉट प्रोसेस लगाएंगे एज अ इन्वेस्टर कि जो चीज महंगी हो जाती है उसका फिर आगे भाव बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो डिफेंस और ये सब सेक्टर्स, दीज आर वेरी टैक्टिकल कॉल्स। और एज एन इन्वेस्टर, मे बी इफ देर इज अ गाइड लाइक योर सेल्फ हु इज गाइडिंग देम कि अच्छा आप अभी ये टैक्टिकल कॉल लीजिए और अब आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लाइफ में प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, सी मार्केट इज अ, आपने देखा है जैसे समुंदर है, समुद्र की लहरें पहले आपको देंगे और फिर समुद्र वो लहरें खींच के वापस भी ले जाए। So that is what happens. First you will gain the returns, but if you don't do profit booking and take home that money, that's notional profit. So it means that when these themes become very, very expensive, you need to book profit and you need to take home money. What happens in the diversified funds is that they are able to rotate the money. But in a sectoral fund, fund manager doesn't have an option to rotate the money. He has to keep invested in that sector. और उसमें आपके होंगे 10 से 15 स्टॉक। सो ये जो रोटेशन है सेक्टर्स की, इसको ना मैं रोक सकता हूं, ना किसी फंड मैनेजर को अगर वो बहुत अच्छा लगता है सेक्टर वो रोक सकता है। आप देखिए पिछले साइकिल्स में कंजम्पशन, FMCG वाज द फेवरेट सेक्टर, फाइन, जनरेटिंग वेरी गुड फ्री कैश फ्लोज, गिविंग गुड डिविडेंड्स, बहुत अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनीज। बट क्या हुआ, द रिटर्न्स फ्लैटेंड आउट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, बिकॉज आप क्या करते हैं, आप अपफ्रंट कर लेते हैं, आप कहते हैं बहुत पॉजिटिविटी है। So that is what is going to happen. You need to take only sectoral calls tactically and look at more broader diversified funds. Now, tactically sectoral calls, how we take, we have a framework called sector rotation framework. हम उसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं और ये बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टिंग को हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बट अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप एक लेमैन भी, आपको पता है कि अच्छा जो चीज का भाव गिर गया है ना वो मुझे देखनी है, या जो चीज चली नहीं है वो देखनी है, या जो चीज किसी के पास नहीं है वो देखनी है, और जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ आगे आने वाली है बहुत तेज वो देखनी है। तो अगर मैं ऐसे सेक्टर्स देखता हूँ, उसमें कौन से सेक्टर आते हैं? सबसे पहले आता है फाइनेंशियल्स, लाइक बैंकिंग सेक्टर। while it has gone up recently, but 4 साल से there has not been much move in the banking sector. IT, you have seen कि IT sector में अच्छा correction आया after the Trump administration coming in, and these stocks are not factoring in very high growth rate, right? Then hospitals,
within healthcare pharma is a very good sector because it is not getting impacted by what is happening externally. Plus, consumption as a sector has been beaten for a very long time. So when this happens कि आपका जो है प्रॉफिट पूल में वैल्यू कम हो गया, मार्केट कैप पूल में कम हो गया है, that is the time you need to deploy money and you need to act different from the crowd. अगर आप क्राउड के साथ ही करेंगे इन्वेस्ट, then you will go wrong. एंड मार्केट का जो नेचर है गौरव जी वो बहुत बदल गया. पहले मार्केट में कैसा होता था, अगर आप 10-15 साल पहले देखें, मार्केट में थे आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, दो प्लेयर हैं, राइट. बड़ा वो दो प्लेयर नहीं है, अब प्लेयर बढ़ गए हैं इस पिच पे. अब आपके आगे डोमेस्टिक, फॉरेन, हेज फंड जो छोटे नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं हेज फंड्स की, HNI, रिटेल, multiple players in the market. That is why you are seeing कि market में क्या हो गया है, the rotations in the sectors have become much more faster. बहुत जल्दी पैसा रोटेट हो जाएगा because people are looking at that information, trying to process कि कहाँ पे mispricing है और फिर उन sectors को देखा जाए. तो mispricing अभी कुछ एक इन sectors में है जो मैंने आपको highlight किया. चिरंजीव साहब, आपने एक काफी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो दुनिया कर रही है, जो क्राउड कर रहा है, वो स्पेस महंगा हो चुका है. तो कई बार हमें ऐसा होता है कि सारे पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए हैं और अब तो बचा ही नहीं है, हमारे पास कोई खजाना तो है नहीं कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी आए तो हम कहाँ से पैसे लाएं. सो आपने सुझाव दिया है कि जो सेक्टर की वैल्यूएशन अच्छी खासी हो गई हो, जहां प्रॉफिट आपको अच्छा खासा दिख रहा हो, वहां से प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है. नहीं तो कई बार हम इन्वेस्टर्स दो एक्सट्रीम में देखते हैं, कुछ एक तो हल्का 5-10% प्रॉफिट आया नहीं कि बेचने शुरू कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी है जो लॉन्ग टर्म का मतलब शाश्वत परपेचुअल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं. 10 साल से उन्होंने कोई बैलेंसिंग नहीं की पोर्टफोलियो, कोई सेक्टोरल चर्निंग नहीं की, LTCG का एग्जेम्पशन भी नहीं लिया. सो एक थंब रूल आपने दे दिया कि भाई जहां पे वैल्यूएशन ज्यादा महंगी हो जाए और अगर वो सेक्टोरल है, जहां फंड मैनेजर को रोटेट करने की सुविधा नहीं है, वहां आपको खुद ही कॉल लेना पड़ेगा. और अभी दुनिया डिफेंस की बातें कर रही है, हम अपने सर्किल में, सोशल सर्किल में ऑर्डर बुक्स की बातें कर रहे हैं. 5 साल 7 सालों का ऑर्डर बुक आ चुका है, मगर ऑर्डर बुक के आगे एग्जीक्यूशन की भी कहानी है. अगर एग्जीक्यूशन सही से नहीं हुआ तो ये सेक्टोरल शिफ्ट भी हो सकता है एंड इट मे बी एन इंडिकेटर आल्सो फॉर अस टू टेक अ कॉल. सो आपने बताया हमें कि जो सेक्टर्स की चर्चा अभी दुनिया नहीं कर रही है, शायद वो सेक्टर हो सकता है एक अच्छे वैल्यूएशन पे, और उस सेक्टर को हम अपने कॉल में ले भी सकते हैं. जैसे आपने बैंकिंग बताया, आपने IT बताया जहां पे काफी करेक्शन आया है, आपने हेल्थ केयर बताया, आपने उन सेक्टरों के नाम बताए जिनको न तो वॉर से मतलब है, आपने कंजम्पशन बताया जिसे किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन से कोई स्ट्रेस नहीं है, और जो चला नहीं है इसका मतलब भाव उसका सही मिल रहा है. सही. So I'm enjoying this conversation. I hope my audience, which is mainly from defense and PSUs, there are many PSU board के members भी हैं, तो ये हमारी बातों को बड़ी आसानी है समझ सकते हैं. ये ऑर्डर बुक का मिलना और उसका एग्जीक्यूशन होना और ट्राजेक्टरी बेहतर. So my next question to you, sir, will be जो हमारा लास्ट ईयर सितंबर से करेक्शन का साइकिल शुरू हुआ, जो ट्रिगर हुआ. So the first trigger, which I believe was a drop in earning cycles, corporate earning cycle जो काफी drop हो गए थे, that was the first trigger, and then subsequently there were many events follow. So अभी आप क्या देख रहे हैं, ऐसे क्या ट्रिगर हो सकते हैं जो मार्केट को वापिस से एक बुल रन पे लाए, और अगर अर्निंग के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अगले शॉर्ट टू मिड टर्म में क्या आपको लगता है कि रुझान कैसे बन रहे हैं? सो अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखिए और स्टॉक्स का मूवमेंट भी देखिए, सी लिक्विडिटी जो फ्लोज हैं दैट इज वन फैक्टर, बट अर्निंग्स ग्रोथ लाइक यू राइटली सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप देखेंगे टिल 24 एंड FY24 वी वर इन अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल, कि अगर मैंने 10 रुपए का EPS किया है, मैं उसको और अपग्रेड होता जा रहा है. वो क्यों अपग्रेड हो रहा था? अगर आप देखिए FY22, 22 और 23, इन 2 साल में हमारी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 20% से ऊपर आई, बट जो अभी पिछले 2 साल में इज गेटिंग डाउन टू अराउंड 9% लेवल.
10% से नीचे आ रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है अर्निंग्स में, वो है हमारा मार्जिन बहुत जोर से एक्सपैंड हो रहा है। जो FY19 में EBITDA मार्जिन क्यूमुलेटिव ऑफ निफ्टी कंपनीज का है, निफ्टी 500 का, NSE 500 का, जो 18 से 19% था, वो अभी चला गया है 22%। 22% मार्जिन फ्रॉम 19%। इसका मेन रीजन क्या है? कमोडिटीज वर गोइंग डाउन, corporates were also cutting costs, and lot of sectors which were coming out of the weak phase, उनको अच्छा भाव मिल गया, प्राइसिंग एनवायरनमेंट अच्छी हो गई। अब आप देखिए ट्रांसफॉर्मर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स आज की डेट में मार्केट में आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड है। केबल्स वायर्स हैं, उन कंपनीज ने बहुत अच्छा किया मार्केट। So there were certain sectors which got lot of benefit of lower capacity and higher demand. Now going forward, अगर हम FY26 की बात करते हैं, so जो स्ट्रीट के एस्टिमेट है फॉर EPS इज एट अराउंड 13 to 14% लेवल, 13 से 14% अर्निंग्स ग्रोथ है। अब आपने सही पूछा कि अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि टॉप लाइन ग्रोथ आना, वॉल्यूम ग्रोथ आना, क्योंकि मार्जिन जो है हमारे बहुत एक्सपैंड हो चुके हैं एंड मार्जिन शुड सस्टेन हियर। अगर कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो मार्जिन कुड आल्सो सी अ डाउनवर्ड करेक्शन, तो इसलिए टॉप लाइन ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप देखेंगे कि सरकार ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं। व्हेन यू लुक एट RBI has done rate cuts, CRR cut, policy rate cut हुए हैं। When you see they have given also tax rate cut to drive consumption, 1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू फोरगो किया है सरकार ने, ताकि कंजम्पशन साइकिल हमारा वापस आ सके। कैपेक्स पे अगर हम देखते हैं, सरकार ने 8 से 10% की ग्रोथ दी है फॉर FY26। वो इसलिए क्योंकि अगर हम पिछले FY25 से पहले देखें तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स था, हर साल 20% की केगर से ग्रो कर रहा था फॉर द लास्ट 4 years। तो सरकार का बहुत जोर से खर्चा कर रहे थे ऑन रोड्स, रेलवेज, वाटर, डिफेंस, ये 4 सेक्टर्स पे। अब सरकार ने बोला है कि अच्छा, मैंने 4 साल तक बहुत खर्चा किया, अब इस बेस पे मैं और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता इसको, है ना। तो आपका जो 11 लाख करोड़ का साल का खर्चा है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू एब्जॉर्ब दैट एक्सपेंडिचर। वो उतना खर्चा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 8 से 10% ग्रोथ कर रहा है। सरकार कह रही है कि हमें अब कंजम्पशन को ड्राइव करना है। कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए यू नीड टू गिव some benefits to people because inflation has impacted disposable income. रेंटल बहुत बढ़ गए, आपने सबने देखा होगा कि the way rentals have gone up, which is impacting common man's spending power. So these are the factors जिसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ताकि हम जो है डिमांड को रिवाइव कर सके ऑन द कंजम्पशन साइड। सो अगर आप देखेंगे इसमें भी जो स्मॉल और मिड कैप हैं, दे विल बी एबल टू ग्रो मच बेटर देन द लार्ज कैप्स। The balance sheets of these companies have become very strong. As such, corporate India balance sheets are very strong. और जब हम कहते हैं ना ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जो अपना कोई बिजनेसमैन होते हैं वो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने अगर 100 रुपए डाला है तो मुझे उसमें से रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर हम इंडिया की कंपनीज देखते हैं तो 17% हमारा ROE हो गया, एंड इट हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, अराउंड 400 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट सिंस प्री कोविड। सो हमारी जो है फाइनेंशियल हेल्थ of the banks is very good. Central government financial health is very good. They are doing a lot of policy reforms to drive the market. Only thing is ki how these geopolitical issues can impact commodities, which can impact the margin profile of the companies and could derate this 13 to 14% growth what we are factoring in for the future. और इसीलिए आप जब देखते हैं ना market returns are function of this earnings growth. क्योंकि अभी जो हमारा 20-21 का PE मल्टीपल है उससे ऊपर नहीं जाएगा वो, तो मुझे जो अर्निंग्स रिटर्न आएगी, जो मेरा रिटर्न बनेगा, वो सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ से बनेगा। अगर वो कम होती है तो मेरा रिटर्न भी कम होगा। Very rightly said, sir. Market returns always follow earnings growth. और हमारी पैनी निगाह फंडामेंटल्स की स्टडी पे और अर्निंग्स की स्टडी पे होनी चाहिए।
एक जब आप खुद ही हैं हमारे सामने, और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट और इकोनॉमी की चर्चा हम करते हैं, मगर जब एक फंड मैनेजर लाइव हमारे साथ होता है तो हमारी इच्छा होती है उस, जैसे एक हवाई जहाज है, उसके पायलट है, तो पायलट खुद ही हमारे सामने है। So let me narrow down the discussion to your fund, which you have been running very successfully, as I said earlier, also the Tiger Fund and of course the Business Cycle Fund. Yeah. So what is your biggest concern today as a fund manager? And जैसा आपने large और mid और small की valuation में बताया कि mid और small काफी high valuation पे trade कर रहे हैं. So how you are aligning to all these calls in with respect to DSP Tiger Fund or the other fund which you are managing, sir? So I think that is a very important question, Gaurav, because we are at a point of time in the market हो रही है and they are happening right now. So अगर आप टाइगर फंड भी देखें, टाइगर फंड में पिछले साल तक इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स एज सेक्टर was 40% weight. 40% weight. इसका मतलब I was running a very heavy overweight on the industrial manufacturing sector for a very long time. आज उसका वेट कितना कर दिया मैंने? 25%, 25%. Now the question will come is that where you have moved this money in the Tiger Fund. So this money has been moved into healthcare infrastructure like hospitals, diagnostics. This money has been moved into one of the very new sectors which is emerging and becoming big, which is capital markets. कैपिटल मार्केट्स हमने 2-3 साल पहले कभी सुना ही नहीं था कि कोई इतना बड़ा सेक्टर एग्जिस्ट करता है और जो बड़ा हो सकता है. कैपिटल मार्केट्स में क्या आता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एक्सचेंजेस, वेल्थ मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब है. अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट में अगर आपका आउटलुक अच्छा है, दिस सेक्टर विल बिकम वेरी बिग. अदर सेक्टर which we have added is definitely some of the companies in the consumption oriented sector like consumer durables and EMS space. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक नया सेक्टर है which is also emerging and going to become big. When you look at the business cycle fund, जब हमने दिसंबर में business cycle fund launch किया, then we said that we are going to be having zero weight on IT sector. Zero weight. Having zero weight, Gaurav ji, is a very tough call for any fund manager. But अगर आपका fundamental thought process clear है, then you can take that call. Because IT sector उस वक्त बहुत महंगा था, and we were seeing that US is going through a big transition with Trump coming in, और इसके कारण IT में correction आ सकती है. And then you saw IT sector correcting by 30%. Once it corrected, then we said now it is coming into the zone where we need to increase weight in the IT sector. तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है गौरव जी? भाव भगवान है. हमने देखना है भाव. भाव में आ गया नेगेटिविटी तो यू डोंट हैव टू थिंक that it will be more negative at that point of time, and that is what is happening in the IT sector. Now the biggest thought process which will be there in the IT sector, while people are worried about AI and all that, and I agree there could be a worry, but now you have to also think कि AI आने से किन सेक्टर्स को बेनिफिट होगा. AI आने से क्या होगा? मैन पावर रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, there could be a significant margin expansion which can happen. आपका क्या होगा गोइंग फॉरवर्ड? व्हाट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई. तो गौरव जी के नीचे 4-5 एजेंट होंगे. एक एजेंट होगा जो अपने सारे क्लाइंट्स को मेल भेज देगा. एक एजेंट होगा जो डिसाइड करेगा कि अच्छा कौन से फंड्स अभी थोड़ा ठीक कर रहे हैं. दैट इज हाउ एआई विल ट्रांसफॉर्म ईच एंड एवरी बिजनेस. दैट इज व्हाट आईटी कंपनीज विल सी गोइंग फॉरवर्ड, एंड वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली, and they are strong free cash flow generating companies. Then the focus right now has to be on the domestic oriented sectors, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बाकी जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं उनमें क्या हो सकता है. because some of the other global sectors, they may go through a lot of issues in terms of the supply chain, in terms of the growth outlook. So their pharma sector is going through a painful phase where till the time the tariffs are not settled,
the things will not settle and they will see some earnings cut in the near term. But once that happens, तब आपको तैयार रहना है कि अच्छा जितना अर्निंग्स कट होना था हो गया, तब आपको वहां पे एंट्री करनी है. So these are the changes which we did in the business cycle fund also. I think now the big sectors which will see traction is NBFCs. Non-banking financial corporations, they will see traction. NBFC is a sector which is part of the financial sector. उसका क्या reason है? First, NBFCs benefit with the rate cut क्योंकि उनकी cost of financing कम हो जाती है, तो margin expand होते हैं. Second, when government is trying to drive the consumption, so NBFCs are the one who will be now doing unsecured lending. तो आपके जो है हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, ये सब कंपनीज जो है इनका टाइम आ गया, कंजम्पशन का टाइम आ गया, जैसे मैंने आपको बोला. तो आपका एक तरफ इंडस्ट्रियल्स जो है बहुत महंगा हो गया, 5 साल से बड़े अच्छे रिटर्न दे दिए, वहां से पैसा आपको मूव करना है टू सम ऑफ दीज सेक्टर्स. और आपको अभी इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी भी आपको लोग ये कहेंगे बहुत अच्छा है इंडस्ट्रियल्स, बहुत अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग, बट इट विल चेंज and it will change in the future and you'll see in the future that how these changes are happening. So that is where money will move to NBFCs. Insurance is one of the sector which has done phenomenally well. So we moved our money to the insurance companies, and earlier there was a lot of overhang of regulation. Now regulation across the board is getting lenient. RBI governor, SEBI chairman सब कह रहे हैं कि हमें रेगुलेशन को थोड़ा लूज करना है, जो हमने बहुत टाइटन कर दिया था. As that is happening, some of these sectors are getting a lot of benefit, and you see the way exchanges are doing well. So we have added an exchange called MCX in BCF fund. We used to own BSC, asset management companies. जैसे जैसे आपका assets grow होंगे, उस पे आपको पैसा बनेगा, प्लस आपका नया asset आएगा, तो 15 से 17% की growth आपकी इनमें आ सकती है. Hospitals, like I said, not a dependence on global, more dependence on the Indian market. GDP plus growth category आप उसमें देख सकते हैं. Insurance can do well. So this is how, sir, we rotated the money. Very insightful reply, sir. और इससे एक बात का तो पता लग गया कि as a layman investor जब हम prompt होते हैं कि डीमैट अकाउंट खोल के क्यों ना स्टॉक्स भर लिया जाए और खुद से ट्रेडिंग करने में लग जाया जाए, तो ये तो जो समझ आ गया कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो कॉल्स ले रहा होता है, हम उसके विपरीत ले रहे होते हैं. हम लोग कहाँ डिफेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ एआई की बात कर रहे हैं, और जो एक फंड मैनेजर है वो उसके कॉन्ट्रा वो हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, वो कैपिटल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, वो फिनेंशियल में भी नॉन लेंडिंग स्पेस की बात कर रहे हैं. तो कितना डीप रिसर्च होता है, कितनी फाइन ट्यूनिंग होती है, कितनी हमारी परसेप्शन लेवल और एक्चुअल जो गेम चल रहा है इसमें कितना फर्क होता है. और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि भाव ही भगवान है. कितनी भी बढ़िया अच्छी कंपनी है मगर उसका भाव अगर बहुत पढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है, और नॉर्मली एज अ लेमैन वी टेंड टू पिक इट अप एट द पीक ऑफ द साइकिल ओनली, क्योंकि हम गूगल रिसर्च करते हैं, हम सब कुछ गूगल से पूछते हैं. तो जिसका पिछला 4 साल बढ़िया चल गया हम उसी में जाने लगते हैं, और एक फंड मैनेजर के कॉल्स बिल्कुल अलग हो रहे होते हैं. तो ये सुन के काफी अच्छा लगा कि जो चीजें हम बाहर में अपना दिमाग अप्लाई कर रहे हैं उससे बेहतर एक फंड के जरिए हम करें, जहां एक फंड मैनेजर जो पायलट होता है उस फंड का, वो ऑलरेडी काफी प्रेसिजन के साथ ऐसे कॉल्स ले रहा होता है. मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, अब वक्त कम है, 1-2 हम अपने ऑडियंस के भी सवाल लेंगे लास्ट में. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, since I am majorly a retirement planning specialist, I manage retiree portfolios. So post superannuation सर 2 चीजें काफी होती है. एक के पास लमसम पैसा होता है, तो पैसा ज्यादा होता है और वक्त ज्यादा होता है. अब जब ये 2 चीजें ज्यादा होती है तो इट गिव्स अस वेरी थ्रिलिंग टू लिसन CNBC फॉर द एंटायर डे, और इकोनॉमिक टाइम्स देख लेते हैं और यार दोस्तों से बातें भी कर लेते हैं और उनके बहुत सारे सुझाव मिल जाते हैं. फिर कभी फेसबुक, ट्विटर, एक्स जो अब हो गया है उस पे भी हमें टिप्स वगैरह मिल जाते हैं. तो एक फंड में न जाने की बजाय अगर हम एक डीमैट खोल के जाएं और
एक फंड में जाए तो इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशन, हम्म। तो जरा प्रकाश डाले कि ये इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क क्या होता है, आप इतनी जो कॉस्ट लेते हैं इसके बेसिस में रिसर्च का क्या स्ट्रक्चर है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपकी टीम में कौन कौन है, हाउ डू यू मैनेज द रिस्क, एंड कैन यू एक्सप्लेन जस्ट द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क which DSP has, which I as an individual don't have. सर नहीं गौरव जी, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो पिछले 4-5 साल में हुआ है कि सबके एक जो भी आप किसी से मिलेंगे, एवरीबडी इज अ फंड मैनेजर ऑन द स्ट्रीट राइट नाउ, क्योंकि सब लोगों ने, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियोज बनाए हैं अपने, और सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियोज ऐसे बनाए हैं कि उसमें आपने भर लिए हैं स्टॉक्स बहुत ज्यादा। तो यू हैव फील्ड, मैं कई इन्वेस्टर से बात करता हूं तो किसी ने 70-80 स्टॉक्स लिए हुए हैं, फाइन। नाउ last September also, lot of investors I met, I said please do Diwali cleaning, अपने portfolio का थोड़ा साफ कीजिए, because they will not even know what all they have added. So the point is that single stock portfolio investing is a very tough game, and for people like your investors who are there, who are retired people, they have to be very careful with their money, and they have to understand that their now money is not very risk oriented money. It has to be invested in a way कि वहां पे रिस्क कम रहे, और रिस्क कम कहाँ होगा, रिस्क कम होगा where you are giving it to an institutional manager who is managing this money with a very large team of people or analysts who are tracking these sectors. हर एक सेक्टर के लिए एक एनालिस्ट है, वो एक स्टॉक को रेगुलरली ट्रैक कर रहा है। फिर हम हर एक कंपनी से जाके मिलते हैं। फिर आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी जो PSUs के, जैसे आपने बोला, और कई मेरे भी जान पहचान के हैं जिनसे मैं डील कर चुका हूं, सो हम उनसे भी जाके मिलते हैं कंपनी से। सो जब हम कंपनी से मिलते हैं, देन वी आर एबल टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि स्ट्रीट क्या सोच रही है और कंपनी क्या सोच रही है। और प्लस आप अगर देखेंगे ट्विटर और ये सब जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब आपका पैसा बनाने के लिए नहीं है। These are just to push the stocks for somebody else to make the money. आपको अपना जो कैपिटल है, you have to protect your capital at this stage of your life and make sure that you are able to get a consistent return to meet your requirements in the future and make it a longevity thing. तो जब हम देखते हैं funds have a very big teams to manage this. Funds have very strong risk parameters. Funds have teams who are regularly tracking कि कौन सी कंपनीज में कोई इश्यूज है, एंड देयर आर आल्सो फॉरेंसिक एनालिस्ट। फॉरेंसिक क्यों जरूरी है? बिकॉज जैसे आप देखते हैं कई कंपनीज में बहुत घपले हो जाते हैं, और जब ये बुल मार्केट होती है तो वो घपले होने बहुत वो है, बिकॉज नोबडी इज लुकिंग एट कि कौन सी कंपनी क्या बोल रही है। आज की डेट में अगर AI आया, देयर बी लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच विल कम एंड से आई एम इनटू AI, देयर बी लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच विल सडनली से आई एम अ डेटा सेंटर कंपनी, but those are not the companies which have the real edge, and maybe after 5 years those companies will not even exist. So why you are deploying your capital, which is a very hard earned capital through your life, into these stocks? This is not worthwhile to put your money like this at such a high risk, and let a distributor guide you, let a mutual fund manage it, let a professional fund manager manage it, who is able to see that what is happening on the stocks, which are good companies. See, the most important goal in life is कि मेरा जो पैसा है वो टूटना नहीं चाहिए. If you have capital erosion, then making that money again is going to be a very tough task. So हमें अपना पैसा टूटने नहीं देना और धीरे धीरे उसको ग्रो करने देना है. And one day when you will open your account, you will see that you have made phenomenal returns versus looking at your statement every day. Don't look at your statement every day, because the more you will look at your statement every day, the more you will be pushed to act on it. If you have taken a right call and built your core and satellite portfolio, where core portfolio you have chosen less risky strategies, good professional managers, I think you will be fine, you will do well, and you will have a very good outcome over the longer run, and you will create generational wealth which your next generations will be able to benefit from.
थैंक यू सो मच सर। आपने काफी लाइटनिंग हमें बताया कि जब हम एक इंडिविजुअल के हिसाब से कॉल लेते हैं और एज ए फंड मैनेजर जब एक कॉल होता है तो इसमें काफी डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर सेक्टर के अपने एनालिस्ट होते हैं। सो आई थिंक वी हैव नियरली फिनिश्ड द टाइम। बिफोर आई ओपन फॉर 2-3 क्वेश्चंस, if that is just I will summarize, I will give a quick summary of what we have spoken so far. हमने जब शुरुआत करी थी तो एक मार्केट आउटलुक लिया था चरण साहब से। हमने अगले शॉर्ट टू मिड टर्म में क्या मार्केट में होने वाला है, वैल्यूएशन के मुकाबले कैप वाइज, ये सब सुना हमने। हमने जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेस चल रहा है इसका हमारे इंडियन बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या स्टॉक मार्केट पे होने वाला है और कौन से सेक्टर्स हमें फोकस करने चाहिए, इसके बारे में हमने जानकारी पाई। एंड देन वी ऑल्सो हर्ड द अर्निंग साइकिल। क्या हमारी अर्निंग साइकिल जो पहले खराब हो गई थी, जैसे ट्रिगर हुआ था एक करेक्शन, उसका अगला आउटलुक क्या है। और फाइनली हमने सुना कि टाइगर फंड में जो फंड मैनेजर हैं वो क्या कॉल ले रहे हैं, क्या सेक्टोरल शिफ्ट कर रहे हैं। और एज अ लास्ट क्वेश्चन हमने ये सुना कि एक फंड मैनेजर जब एक कॉल लेता है और एक इंडिविजुअल लेता है उसमें कितना बड़ा फर्क आता है। तो पैसे बहुत महत्वपूर्ण है और रिटायरमेंट के पैसे तो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट यू टेक एवरी डिसीजन वेरी प्रूडेंटली, डोंट ओवर एम्फेसाइज योरसेल्फ। और एक चीज मैं अपने इन्वेस्टर से हमेशा कहता हूं कि भाई हम निवेश कर रहे हैं ताकि अच्छी जिंदगी जिए, हम अच्छी जिंदगी इसलिए नहीं जी रहे हैं कि निवेश करें। तो अपना वक्त आप अपने विषय में बिताएं, अपना वक्त अपने परिवार वालों से बिताएं, अपना वक्त डेली अपने फंड की वैल्यू ट्रैक करने में ना बिताए। क्योंकि कई बार हफ्ते में एनएवी का परिवर्तन जो है वो तो हफ्ते में 5 दिन होता है, मगर कई बार हम उसे 20 बार चेक करने की आदत लग जाती है। एक बार सुबह भी देखा है और हमें लगता है शाम में देखेंगे तो क्या पता 2-3 लाख ऊपर नीचे हो जाए। तो इन आदतों से बचे, अपना वक्त अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा बिजाए और ये कॉल्स हम प्रोफेशनल्स पे छोड़ दें। सो बहुत शुक्रिया चरण साहब, काफी एनलाइटनिंग सेशन रहा है। आई हैव thoroughly enjoyed it. And before I give a wind up call, we are still left with 5 minutes, and I will open this session. If there is somebody, if you can raise your hand so that my tech guy will unmute you and you can ask a question. Apur, can you see if there? Yeah, I can see Mr. Sunil sir. आप अपना unmute करके you can ask your question. Sunil Rastogi जी. थैंक यू कुमार गौरव एंड थैंक यू चरणजीत सर। मेरे दो एज ए लेमैन इन्वेस्टर मेरे दो क्वेश्चन हैं। Yes, sir. एक तो आपने बैलेंसिंग एसेट बैलेंसिंग की बात करी है जिसमें 3 मेनली एसेट बताए हैं आपने, रियल एस्टेट, इक्विटी एंड मेटल्स। एंड मेटल्स में सिल्वर गिविंग वे टू गोल्ड। तो इन बैलेंसिंग का क्या मतलब है, और जैसे रिटायर्ड पीपल हम लोग हैं तो उनका बैलेंसिंग का क्या, किस तरह से उसको समझा जाए कि हम करें उसको। एक क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि जब हम डाइवर्सिफाइड फंड में हम करते हैं, सेक्टोरल फंड में तो आपने बताया कि वो साइकिल वो आप से अच्छा कोई नहीं कर सकता, उसमें तो मेरा कोई डाउट नहीं है। बट डाइवर्सिफाइड फंड में हमें प्रॉफिट बुकिंग तब करनी चाहिए, और ये मेरा क्वेश्चन है दो। Sir, I think these are very valid questions. One is that when you look at the asset mix, now what is happening is कि asset mix का जो है, what is the right thing is dependent on your goals and your stage of life, sir. If you are like, retired person, you would have already built your real estate portfolio. It is better that the money which you are getting from your retirement should be put into the funds which are less risky strategies. And what we've also seen is that there you take more conservative strategy कि उसमें debt भी है और equity भी है। तो debt portfolio जो है maybe 40% है, 60% is equity. So what the fund manager will do is कि जब आपका equity में बहुत return बन गया और आगे आपका return कम लग रहा है तो वो debt में डाल देगा, तो आपको 7% return on the debt you will keep getting. So that is how they will balance. And at this point of time in the life, those are the kind of funds which should have more in your portfolio rather than having sectoral bets. Because sectoral bets
or somebody, maybe a younger age guys, they want to take higher risk and they want to participate in that opportunity. They're fine with maybe losing 5-10%. So you don't take that risky calls. You go with more diversified. And coming to the point of flexi cap में आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, बिकॉज वो तो डाइवर्सिफाइड है. फ्लेक्सी कैप में क्या है, लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैटेगरीज हैं. फंड मैनेजर विल टेक अ कॉल कि अच्छा अभी लार्ज कैप मेरा सस्ता है तो मैं लार्ज कैप में वेट बढ़ा दूं और स्मॉल और मिड में कम कर दूं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एलोकेशन. You don't have to do profit booking. Profit booking was from the concept of, like Gaurav ji asked, कि sectoral fund है या thematic funds है या आपने अगर single stocks ले लिए तो, and at this stage of the life where if all are retired people, you should avoid single stock investing. Focus more on portfolios, investing with the flexi cap funds or a balanced advantage funds, which are the hybrid funds, which give you that flexibility where the fund manager himself will take a call. और आपको लगेगा उसके बाद कि अच्छा ये आउटकम मेरा बहुत अच्छा है, I didn't take enough risk, but ये देखो 15% से कंपाउंड होता गया. ये कैसा है ना, वो जैसे छोटा पौधा होता है ना, धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो बड़ा पेड़ हो जाता है, तो तब आपको लगता है कि वाह क्या ग्रोथ है. ये फंड्स में भी ऐसा ही है. जब आपके वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे ना, आउटकम विल बी. और क्या होता है कि लॉट ऑफ टाइम्स what happens is that certain sectors will go up like very sharp up move. उसी जोर से वो नीचे भी आएंगे. जब वो नीचे आएंगे, maybe for next 5-10 years they will stay at that level. It means that it will then catch up with the return which you are making as a tortoise, कि धीरे धीरे चल रहा हूँ और वो catch up कर लेगा आपके साथ. So that's why I'm saying in flexi cap you don't have to do profit booking. You need to have hybrid funds within your portfolio to manage your risk and to manage your expectations going forward, and avoid single stock or sectoral funds where the risks are pretty high. आपने गौरव जी का काम बहुत सिंपल कर दिया है कि फ्लेक्सी कैप और डाइवर्स में ले लें, हाइब्रिड फंड्स में. मगर इसमें जैसे है कि हम लोग प्योर फंड वो लेते हैं, प्योर इक्विटी, मतलब उसमें जहाँ पे लार्ज कैप है, प्योर लार्ज कैप या प्योर मिड कैप और मे बी मल्टी कैप, उस तरह से लेते हैं. तो उस केस में कोई आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कितना मेरा लार्ज कैप पोर्टफोलियो होना चाहिए, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप? एज ए पर्सन हु इज ऑलरेडी हैविंग एज ऑफ 60 प्लस, उनका कितना होना चाहिए? एंड डेट में कितना होना चाहिए, डेट में कितना रखना चाहिए? कोई अगर थंब रूल, मतलब मेरे ख्याल से हम लोग जितने भी हैं सब पीएसयू रिटायर्ड हैं, वी हैव अ सफिशिएंट मनी इन आवर हैंड जो हमने इन्वेस्ट किया है. तो एज ए थंब रूल कैन यू सजेस्ट समथिंग? थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है हर एक के इंडिविजुअल नीड के हिसाब से. No, that's why I'm saying that don't take those calls yourself. You will not know कि large cap कब बहुत बढ़ गया है और अब small और mid में जाना है, and you will not know when I have to shift from equity to debt. अगर आपने अपने portfolio में flexi cap funds like business cycle fund, like our flexi cap fund, those diversified funds you have kept, you are actually taken care of. So if you have kept a balance advantage or a fund which also has debt, you have again taken care of कि आपको कॉल नहीं लेना कि कितना मेरा डेट होना चाहिए. आप क्या है, अपने पोर्टफोलियो में अगर 100 रुपए का है तो उसमें से 60 रुपीज यू पुट इन द फ्लेक्सी कैप, 40 रुपए जो है आप अपना जो है बैलेंस एडवांटेज और जिसमें आपका डेट ही भी है वो उसमें रख सकते हैं. और what you can do is you can have maybe 10 to 15% in these precious metals and maybe 50% in the flexi cap and remaining in the balanced advantage. आप ऐसा एक portfolio बना सकते हैं. Because precious metals are not something which are just like silver is not just now a store of value. Silver is also getting used now efficiently everywhere. So that will balance your portfolio. And these are the things now you have ETFs available, you have all the asset classes. आपको एक physical भी लेने की जरूरत नहीं है. गौरव जी आपको बता देंगे कि सब कुछ आजकल डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, and you will have a very good portfolio and you can sleep peacefully and enjoy your golf. Is it the right time to invest in metals now? Because the gold is touching 1 lakh plus and silver is also 1 lakh plus per kg. Is it the right time or should we wait for some correction?
Yeah, I think for gold, maybe you can wait for some correction, but for silver and all, the point is that the outperformance of gold versus silver has been pretty high. Now, the other thing which we also look at is ki demand supply. आपका जो है demand for silver is rising, supply is less. So when this happens, then again the prices move up. So I think these are the factors which you look at. And again, you are not going to buy in a day कि मैंने जाके पूरा सारा silver आज ही ले लिया. You are going to invest in an ETF of silver or gold and keep buying it over the period. Keep buying it over the period. जब आप ये करते हैं तो आपका averaging हो रहा है. And you are not having that risk कि मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है and how will I manage that, safety and risk of that. You are having it in a digital format and you are buying it at average pricing. You are buying it as an asset class. मेरे को क्या है, asset classes बनाने हैं. ये जो asset classes है, they'll have different cycles. कभी gold चलेगा, कभी silver चलेगा, कभी equities चलेंगे और कभी debt चलेगा. Nothing is going to be in this curve for all the time. Every time there will be different asset classes. सबसे best outcome आपका आएगा when you have your a bouquet of asset classes which Gaurav ji will help you make, and that is the best thing, having a great advisor who understands your needs. Thank you so much. Thank you, Charan Saab. Any closing remark from your side if you want to give to the audience? Any closing remark for a quick bite? So I think closing remark is that be patient, keep your journey on. और आपने तो life spend करी है in terms of being patient. This is a journey which is definitely going to fruitful. India as a country has got lot of opportunities going ahead. We are on a right path. और अगर emerging markets में flow आता है जो हमें लग रहा है, so next 5 to 10 years are going to be really amazing. We'll make money of our lifetime, but stay disciplined, don't get greedy, and use the right funds and the right ways of advisors to actually guide you in this journey, and you will have an amazing journey going forward. Being patient, this is a journey which is definitely going to fruitful. India as a country has got lot of opportunities going ahead. We are on a right path. और अगर emerging markets में flow आता है जो हमें लग रहा है, so next 5 to 10 years are going to be really amazing. We'll make money of our lifetime, but stay disciplined, don't get greedy, and use the right funds and the right ways of advisors to actually guide you in this journey, and you will have an amazing journey going forward.